All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, I have something very exciting to share. I have something, a real world problem, a real thing that we recently discovered, or I can say we recently encountered. And मैं अपनी learnings इस particular video के अंदर share करना चाहता हूँ about something known as LLM Wiki. So this LLM Wiki is a brand new thing in the AI world, in the context world, and in the AI agentic workflows. And this is something that you should not miss because so I'll tell you a story, okay? So recently what happened? So in Araxan, where I work, so recently I was having conversation with our CTO sir, Raghu sir, and what happened is he told me about this thing that is a LLM wiki. So we debated a lot. We debated some points कि LLM wiki क्या है and what is the problem it is trying to solve. And honestly ना उस particular point पे मैं इस problem के साथ resonate नहीं कर पाया. I thought this is something that okay, this is just another thing which is not really required, which is not really a problem. And all of a sudden, in just 24 hours, when I was building an application, I encountered a very big problem and a very smart problem in LLM. And this thing, that is this LLM Wiki by Andrich, this came very handy. So this is something new जो बहुत जल्दी common हो जाएगा, which everyone will be using. And this is something how you feed the context into the LLM. Because जब भी आप LLM की बात करते हो, we still have a problem of how to efficiently give context to the LLM. Because context is something that is very important. Context is something that costs you money and context is something that is limited. तो अगर आपको LLM का best output चाहिए, if you want your AI to perform the best, the context is something that you have to master, that you have to engineer. So with that, let's understand this new concept of LLM Wiki and let me explain you what is this, and with that, let's start with the video. So this is the official documentation or the official implementation, the understanding or the definition of LLM Wiki. So you can see this is by Karpathy, who was a co-founder of OpenAI. तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं that basically है क्या? A pattern. LLM Wiki is a pattern for building personal knowledge bases for LLMs. यहाँ पर one thing जो मैं अपना एक personal opinion देना चाहता हूँ, that is personal knowledge bases. This जब ये चीज़ common होगी तो हो सकता है that personal knowledge base से वो एक shared knowledge base भी बन सकता है. आज के टाइम में this is a pattern for personal but it can be even on cloud because जब लोग इसको adopt करेंगे, इसको use करेंगे, so I'm pretty sure that कोई ना कोई कंपनी आएगी जो इसको online shareable भी बना पाएगी. Okay? तो ये काम कैसे करती है? सी, let's say that you have an LLM, okay? So let's say that you have an LLM from Claude, okay? Anthropic हो सकता है, OpenAI हो सकता है, तो any LLM, anything. What happens is that you basically gives it some kind of an input, okay? तो आप इसको एक input देते हो in form of a prompt. A prompt is very simple. So prompt can be that, hey, do you know about me? Do you know about my name? And something like that. And by default, these LLMs don't know anything, right? Because these are trained on the pre-training data from the internet. So अगर आप इसको एक ऐसा क्वेश्चन पूछोगे that do you know about me, the answer is always going to be that no, I don't know anything about you. So that is where what you can do is you can give some context, okay, some background context as a prompt, as a string. So for example, मैं यहाँ पे context एक add कर सकता हूँ that hey, my name is Piyush Garg. So first I can give it this and then I can ask what's my name and then ये LLM जो है बहुत सही से बता सकता है that your name is Piyush Garg. क्यों? बिकॉज उसकी हिस्ट्री के अंदर, उसके करंट कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर कॉन्टेक्स्ट था अबाउट माई नेम. सो दैट्स हाउ बेसिकली LLMs वर्क. Now the problem that occurs is that the more you talk to it, the context keeps increasing, right? The context window, not the window, I should say context keeps increasing. So that means जितने ज़्यादा मैं इससे बात करूँगा मेरा context increase होता जाएगा, which is actually a good thing because LLM will know more about me. Let's say मैं इसके साथ बात कर रहा हूँ, मैंने इसको अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया, मैंने इसको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, आई टोल्ड हिम दैट मैं क्या करता हूँ, तो उससे क्या होगा, जो इसका आउटपुट है ना वो बहुत पर्सनलाइज होता जाएगा मेरे लिए because it knows a lot of things about me. That's completely okay. That's really good. Now the problem is that at one particular point, what will happen is that I will have a lot of info about me, right? A lot of information. अभी तक मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया, जो भी किया, प्लस मैं जो भी प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूँ, उसके पीछे की टेक्निकल डिटेल्स, टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव ऑल, ओके, ऑल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टू LLM. ये पॉसिबल ही नहीं है.
अगर आप अपनी लाइफ के बारे में बात करो, इट इज़ वेरी हार्ड टू गिव द ऑल ऑफ द कॉन्टेक्स्ट टू एन एलएलएम बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड सेकेंडली, अगर समहाउ अगर आप पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर फीड कर भी दोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज नंबर वन, हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस मीनिंग दैट अगर आप इसको इतना कॉन्टेक्स्ट दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको अपने 10th क्लास की कोई चीज़ बताई, 9th क्लास की भी कोई चीज़ बताई, पिछले साल का भी कुछ बताया, पिछले साल की लर्निंग्स बताई, आज से 3 साल पहले मैं क्या कर रहा था मैंने इसको वो सारी लर्निंग्स भी बताई, तो उससे क्या होगा कि इसके पास इतना ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा कि अगर मैं इसे कुछ भी पूछूंगा, इट विल हेलुसिनेट बिकॉज टू मच कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड इज ऑफकोर्स द कॉस्ट, बिकॉज मैंने इसको इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दे दिया तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, माई टोकन्स विल गेट यूज वेरी सून। एंड थर्ड प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट हैव बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट विंडो इज लिमिटेड। सो कॉन्टेक्स्ट हमेशा जो विंडो है वो लिमिटेड होती है, तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है दैट आप इसमें पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट फीड कर दो। So that is where the context problem came into the picture, and you need some kind of a smart context ingestion. Okay, so let's call it as a smart context ingestion. देखो, स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है कि मेरे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है किसी फॉर्म में, लेट्स से मेरे पास एक डेटाबेस के अंदर है, बट मैं उसको पूरा डेटाबेस का एक्सेस नहीं दूंगा। क्या मैं इसको स्मार्टली इंजेस्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन व्हाट यूजर इज आस्किंग? अगर मैं उस बेसिस पे उसको कॉन्टेक्स्ट दे पाऊँ, दैट इज रियली नाइस थिंग। तो दैट मीन्स हो सकता है मेरे पास जो मेरी लाइफ के बारे में जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज अराउंड मे बी 250 GB, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट आई हैव अबाउट माई सेल्फ। इट इज़ नॉट श्योर, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट हमेशा इसमें फीड करूं जस्ट टू आस्क व्हाट्स माय नेम। अगर यूजर पूछ रहा है व्हाट्स माय नेम एंड हॉबीज, तो यू शुड नॉट इंजेस्ट द होल 2590 GB, पॉसिबल ही नहीं है। आइडली इस 2590 GB में से क्या मैं स्मार्टली सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल डिटेल्स को क्वेरी कर सकता हूँ? पर्सनल डिटेल्स लाइक मेरा नाम क्या है, व्हाट आर माय हॉबीज, पर्सनल डिटेल्स जो हो सकता है कुछ एमबीज की हो, मे बी जस्ट अ 2 MB, right? And then this 2 MB can be given to the AI, and then I can ask what's my names and hobbies so that it can answer better, answer efficiently. And इस पूरे सिस्टम को हम रैग बोलते थे, राइट? इसी को हम क्या बोलते थे? रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। हम उतना ही डेटा रिट्रीव करेंगे जितना हमारे यूजर के लिए रेलिवेंट है, बिकॉज हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है, हमारे पास अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट हमारे डेटाबेस में पड़ा है, बट द कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ द LLM इज लिमिटेड एंड वी नीड अ रैग। अब ये जो रैग है ना, दिस इज समथिंग जिसने ओवर टाइम ना बहुत इंप्रूव करा है। ओके, बहुत सालों तक वेन एवर यू टॉक अबाउट रैग यू ऑलवेज थिंक अबाउट वेक्टर एम्बेडिंग्स। तो दिस वॉज समथिंग जो बहुत पुराना चलता आ रहा है, दैट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा होगा हम उसको चंक्स में कन्वर्ट करेंगे, हम हर चंक की वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाएंगे, हम उसको एक वेक्टर डीबी में स्टोर करेंगे। जब भी आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे हम उसकी भी वेक्टर एम्बेडिंग बनाएंगे, वी विल डू समथिंग नोन एज अ सिमिलैरिटी सर्च, एंड उसके बाद जो वेक्टर्स मेरे हिट करेंगे आई विल जस्ट फेच दैट कॉन्टेक्स्ट एंड गिव इट टू द LLM। दैट्स हाउ द ट्रेडिशनल रैग वर्क्स। बट स्टिल ये जो रैग है ना, इट जस्ट वर्क्स, बट दिस इज नॉट द ऑप्टिमल थिंग, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या है? नंबर वन, देर इज देर इज अ पाइपलाइन विच यू हैव टू ऑलवेज रन। तो ये जो पाइपलाइन है ना, एक डेव पाइपलाइन होती है। इस डेव पाइपलाइन में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इस डेव पाइपलाइन के अंदर यू आर डूइंग चंकिंग, ठीक है, यू आर डूइंग चंकिंग, एंड इस चंकिंग का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब हाउ डू यू चंक समथिंग? पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, लाइन बाय लाइन, और पेज बाय पेज। आई मीन यू डोंट हैव अ गुड वे टू चंक समथिंग, राइट? बिकॉज चंकिंग के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट ट्रिम हो जाता है। अगर आपके पास एक बुक है, यू वांट टू इंजेस्ट अ बुक इनटू द रैग पाइपलाइन, तो आप उसको कैसे चंक करोगे? पेज बाय पेज करोगे या पैराग्राफ बाय पैराग्राफ करोगे? आई मीन इट्स अ डिसीजन दैट यू आर टेकिंग, बट देयर इज नो कॉन्क्रीट आंसर बिहाइंड इट। देन यू डू अ वेक्टर एम्बेडिंग, ठीक है, तो आपने वेक्टर एम्बेडिंग किया और उसको डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब नाउ द होल क्वालिटी ऑफ योर रैग सिस्टम वर्क्स या डिपेंड्स ऑन द क्वेरी। अगर यूजर ने कुछ पूछा, अगर यूजर ने जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से फ्रेम किया, तो आपके वेक्टर एम्बेडिंग्स का जो हिट है वो भी अच्छा होगा एंड अच्छा क्वेश्चन आएगा, अच्छा आंसर आएगा। बट अगर यूजर की क्वेरी ही बहुत वेग है, अगर यूजर को पता ही नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, यूजर डजंट नो व्हाट टू आस्क, व्हाट आर द राइट टर्म्स टू आस्क, तो उस केस में आपकी वेक्टर एम्बेडिंग्स भी बेकार बनेंगी एंड यू आर गोइंग टू डू अ बैड क्वालिटी ऑफ द रिट्रीवल। सो दैट वाज अ ट्रेडिशनल वेक्टर एम्बेडिंग्स, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हो। Then there was something new, that was a vectorless RAG. Okay, now this is something that was actually good, vectorless RAG. तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, आपने वेक्टर्स को ही खत्म कर दिया, दैट यार हम यूजर की क्वेरी पे डिपेंड ही नहीं करेंगे। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ डेव पाइपलाइन, ठीक है, डेवलपर के हाथ में मैं कंट्रोल देना ही नहीं चाहता कि क्या फेच करना और क्या नहीं। लेट LLM डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी फेच्ड एंड व्हाट नॉट। तो वेक्टरलेस रैग ने आके क्या बोला था, वेक्टरलेस रैग कहता कि हमने एक ट्री बनाएंगे,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बुक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट अ ट्री आउट ऑफ इट। सो ट्री कैसा बनेगा कि मेरे पास एक नोड है, लेट्स से अगर आप एक बुक की बात कर रहे हो, तो ये आपका एक तरह का इंडेक्स पेज है, ठीक है, जैसे आपके पास बुक में एक इंडेक्स पेज होता है, ये आपका एक इंडेक्स पेज है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेट्स से बुक का जो मान लेते हैं ये बुक एक डेटाबेस की बुक है, तो मैंने यहाँ पे एक चैप्टर इंडेक्स कर दिया, दैट इज दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज अबाउट हाउ टू डू दी रीड ऑपरेशंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने रीड ऑपरेशंस रख दिए। फिर उसके बाद डेटाबेस के जो राइट ऑपरेशंस है वो मैंने यहाँ पे रख दिए। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, डेटाबेस के जो व्हाट डू यू कॉल, जो डेटाबेस के इंटरनल्स हैं कि डेटाबेस के इंडेक्सेस कैसे काम करते हैं, वो मैंने यहाँ पे रख दिए। देन व्हाट आई विल डू इज रीड के अंदर अगर आपको एक सिंगल क्रिएट करना है तो मैंने उसका सारा चैप्टर का नोट यहाँ पे रख दिया। अगर आपको एक बल्क इंसर्ट बल्क कुछ करना है तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। एंड हाउ टू डू एन एफिशिएंट वेयर क्लॉजेज एंड ऑल, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, तो टेक्निकली आई एम चंकिंग इट बाय द मोटिव, आई एम चंकिंग इट बाय द फ्रेज, ठीक है, उसका पीछे का मोटिव क्या है। उसके बाद राइट्स में भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक ट्री बनाऊंगा जिसके अंदर मैंने बोला कि सिंपल राइट कैसे करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया कि हाउ टू डू बल्क राइट्स। फिर मैंने यहाँ पे बनाया हाउ टू डू राइट फ्रॉम अ फाइल। फिर इंडेक्सिंग के अंदर मैंने यहाँ पे बी प्लस ट्रीज का कुछ चैप्टर रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक और चैप्टर रख दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्री कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब अगर यूजर कुछ भी पूछता है, लाइक फॉर एग्जांपल यूजर ने पूछा दैट हाउ टू डू अ बल्क इंसर्ट, ये पूछा, तो एलएलएम क्या करेगा ना, डेवलपर कुछ नहीं करेगा, एलएलएम क्या कर सकता है, एलएलएम इस ट्री को पार्स कर सकता है। कैसे, वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो एलएलएम क्या करेगा, इंडेक्स पे जाएगा, वो बोलेगा यार मेरे को ना बल्क इंसर्ट के बारे में जानना है। तो ये इंडेक्स क्या करेगा, उसको बताएगा यार मेरे पास 3 चैप्टर्स हैं, रीड राइट और इंडेक्स। तो बेसिकली क्या होगा, एलएलएम फिगर आउट करेगा यार इंसर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो राइट्स में जाता हूँ, तो आपका एलएलएम यहाँ पे जाएगा, ठीक है, राइट्स में। फिर वो राइट्स में देखेगा, राइट को पूछेगा भाई तेरे पास क्या क्या चैप्टर है, और यहाँ पे कुछ समरी होगी, तो उसको राइटिंग के बारे में पता लग गया, हाउ टू राइट समथिंग। तो राइट बोलेगा यार मेरे पास 3 चैप्टर्स हैं आगे, एक तो है सिंगल इंसर्ट, एक है बल्क इंसर्ट और एक है इंडेक्सिंग। तो यूजर ने बल्क इंसर्ट के बारे में पूछा, एक काम करता हूँ बल्क इंसर्ट वाला उठा लेता हूँ, तो यहाँ पे वो ट्रैवल करेगा एंड इसको वो रीड करने लग जाएगा। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, 3 तरह की नोट्स ट्रैवर्सल की। नंबर 1 द इंडेक्स नोट, तो जिससे मेरे को पता लग गया कि मेरे पास क्या क्या चैप्टर्स अवेलेबल है। मैंने राइट के बारे में पढ़ा और मैंने बल्क राइट के बारे में पढ़ा बुक में से, और यूजर को मैं आंसर दे दूंगा। तो दैट मीन्स एलएलएम हैड द फुल फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रॉल थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, दिस वाज अ वेक्टरलेस रैक जो बनाया था। अब इस वेक्टरलेस रैक के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, हाउ टू स्टोर दिस ट्री, आप इस ट्री को कहाँ स्टोर करोगे, डेटाबेस के अंदर, मोंगोडीबी के अंदर, और अगर आप इसको कहीं पे भी स्टोर करोगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट फॉर द स्टोरिंग दिस, राइट। ये जो पर्टिकुलर ट्री है आप इसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर करोगे, या फिर आप इसको एक एक्सएमएल की फॉर्म में स्टोर करोगे, या फिर एक जेसन भी तो हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट हाउ टू स्टोर दिस पर्टिकुलर ट्री। एंड सेकेंडली, हु विल कंस्ट्रक्ट दिस ट्री, हु विल कंस्ट्रक्ट दिस ट्री। So this was kind of the approach behind the vectorless rack, but it works really amazing. That is where one more thing came, that अगर मेरे को एक पर्सनल, ओके, एक पर्सनल नॉलेज बेस बनाना है, नॉलेज बेस, दैट मीन्स जैसे जैसे मैं अपने एलएलएम से बात करूं, मेरा एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता जाए, मेरा एक मतलब मेरा एक नॉलेज बेस क्रिएट होता जाए, दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मी एंड इट डज क्वेरी वेरी एफिशिएंटली एंड दैट एंड वेरी एफिशिएंटली, एंड जो उसको क्वेरी करना है उतना ही उसको मिले। दैट इज वेयर दिस कॉन्सेप्ट केम ऑफ द एलएलएम विकी। तो एलएलएम विकी कैसे काम करता है, सी, आप एक एलएलएम को जब कॉन्टेक्स्ट फीड करते हो, आप उसको कैसे फीड कर सकते हो, आप उसको प्लेन इंग्लिश में फीड कर सकते हो, यस, नो वन इज स्टॉपिंग यू। आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, रोल जेसन में कर सकते हो, इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड डेटा। आप उसको मार्कडाउन में कर सकते हो, राइट, मार्कडाउन दे सकते हो, आप उसको एचटीएमएल दे सकते हो, आप उसको एक्सएमएल दे सकते हो। देर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मेट्स टू इंसर्ट अ डेटा इनटू एन एलएलएम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ देम। अगर मैं लेता हूँ लेट्स से एचटीएमएल, मैं यहाँ पे एचटीएमएल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। एचटीएमएल और एक्सएमएल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दैट आपके पास ना नंबर ऑफ टोकन्स बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने रिसेंटली ये प्रोडक्ट बनाया था विस्पर टाइप, अगर मेरे को इस वेबसाइट का कॉन्टेक्स्ट एक एलएलएम में फीड करना है, सो व्हाट विल हैपन इज जैसे ही एलएलएम मेरे इस पर्टिकुलर एचटीएमएल पेज को रीड करेगा, उसको ये एचटीएमएल मिलेगा। एंड इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पे ना बहुत सारी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उसके पास एक एल आई टैग मिलेगा, लेट मी जस्ट जूम इन, ओके। तो उसको क्या मिलेगा, उसको एक एल आई टैग मिलेगा, उसको क्लासेस मिलेंगी, उसको एक एसवीजी मिलेगी। टेक्निकली ये सब उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मान लेते हैं वो जानना चाहता था दैट ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज ओनली अवेलेबल फॉर एप्पल सिलिकन, तो उसको पहले स्पैन पढ़ना पड़ेगा, फिर क्लोजिंग स्पैन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको ये भी एक पढ़ना पड़ेगा। तो यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टोकन्स, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स जो एलएलएम को पढ़नी पड़ेंगे। एंड ये क्या करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट पॉइजनिंग करते हैं।
फालतू के स्पैन टैग्स, आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट्स, एचटीएमएल, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट लिखना पड़ता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एफिशिएंट फॉर एलएलएम्स। इट्स गुड फॉर वेब पेजेस, इट्स गुड फॉर योर क्रॉलर्स जो आपके गूगल बॉट क्रॉलर्स होते हैं, बट नॉट फॉर द एलएलएम। अगर मैं प्लेन इंग्लिश की बात करूं, प्लेन इंग्लिश में प्रॉब्लम ये है कि यू मिस द स्ट्रक्चर, बिकॉज प्लेन इंग्लिश में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है। मान लेते हैं मेरे को उसको बताना है ये मेरी हेडिंग है, इसके नीचे ये सब हेडिंग है, फिर मेरे पास ये 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, फिर मेरे पास एक इमेज है। यू कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इन प्लेन इंग्लिश, तो यू बेसिकली लूज द स्ट्रक्चर। अगर आप जेसन में आते हो, जेसन इज ऑल्सो गुड, बट द जेसन में भी सेम प्रॉब्लम है दैट एक जेसन के अंदर नंबर वन यू हैव की वैल्यू पेयर्स, यू हैव टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा। बट पर्सनल नॉलेज बेस जब आप एलएलएम्स की बात करते हो, यू डोंट हैव अ स्ट्रक्चर, आपके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है डेटा का। यू डोंट नो दैट आप किसके लिए बना रहे हो, राइट। एंड उसमें भी क्या होगा, की वैल्यू पेयर्स होंगे, डबल कोट्स होंगे, तो ये एक्स्ट्रा टोकन्स कंज्यूम करते हैं। सो मार्कडाउन केम एज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज इसमें एक बैलेंस है। अगर आप मार्कडाउन्स को देखो, मार्कडाउन्स के अंदर कभी भी एक्स्ट्रा टोकन्स नहीं है, एचटीएमएल की तरह या एक्सएमएल की तरह। मार्कडाउन के अंदर आप प्लेन इंग्लिश के जैसा लिख सकते हो, बट यू कैन इवन हैव स्ट्रक्चर। मार्कडाउन के अंदर अगर आपको एक हेडिंग दिखाना है, यू कैन यूज वन हैश। अगर आपको सब हेडिंग दिखाना है, यू कैन यूज टू हैशेस, राइट। अगर आपको बुलेट पॉइंट्स दिखाना है, यू कैन जस्ट यूज दिस थिंग। तो आप देख रहे हो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन ओपनिंग H1, क्लोजिंग H1, ओपनिंग H2, क्लोजिंग H2, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग LI एंड UL, आप एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम टोकन्स यूज करके आप अपना स्ट्रक्चर यहाँ पर शो कर सकते हो। सो दिस इज वन वेरी गुड थिंग, राइट। इसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, क्लासेस नहीं है, तो वो सब यहाँ पे चला जाता है। प्लस इसका इट्स लाइक प्लेन इंग्लिश, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो मुझे स्ट्रक्चर भी यहाँ पे नहीं चाहिए। सो मार्कडाउन केम एज अ वेरी गुड आइडिया, ओके, मार्कडाउन, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, एलएलएम्स को कॉन्टेक्स्ट फीड कर सकता हूँ। सो दैट मीन्स द क्वेश्चन अबाउट हाउ टू स्टोर द डेटा दैट नीड्स टू बी फीडेड इनटू द एलएलएम, द मार्कडाउन इज द बैलेंस्ड अप्रोच एज ऑफ टुडे। तो नाउ, बट ये मार्कडाउन फाइल्स, यार एक मार्कडाउन फाइल भी तो बहुत बड़ी होती है ना। हाउ टू स्टोर दिस मार्कडाउन फाइल, हाउ टू मैनेज दीज मार्कडाउन फाइल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। बिकॉज अगर मेरे पास एक सिंगल, लेट से मेरे पास कुछ 100 मार्कडाउन फाइल्स हैं, एमडी फाइल्स हैं, एंड हर फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा है। कैन आई गिव ऑल द 100 मार्कडाउन फाइल्स टू माई एलएलएम? नो, अगेन द कॉन्टेक्स्ट विंडो प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेयर दिस पैटर्न केम इन। तो ये पैटर्न क्या कहता है? ये पैटर्न कहता है कि हम क्या करेंगे, दी दिस इज एन आइडिया फाइल, इट इज डिजाइन टू बी कॉपी पेस्टेड टू योर ओन एलएलएम एजेंट, ओके। सो अगर हम यहाँ पे चलते हैं, most people experience with LLMs and documents looks like RAG. Of course, right? You need to upload a collection of files. The LLM retrieves relevant chunks at query time and generates an answer. This works. Of course, this works. But LLM is rediscovering knowledge from scratch on every question. That's the main problem, right? There is no accumulation. Ask a subtle question that requires synthesizing of 5 documents, and LLM has to find and piece together the relevant fragments every time. तो इससे slow भी होता है, and you are wasting your tokens. Nothing is built up, no, and this whole thing, okay. अगर हम आगे चलते हैं, the idea here is different. Instead of retrieving from raw documents at query time, the LLM incrementally builds and maintains a persistent wiki. So that means जैसे से आप उससे बात करते हो, या फिर आप कोई भी रैक सिस्टम है जो आपका LLM है, राइट, दिस इज लेट्स योर LLM बॉक्स, ये क्या कर सकता है, ये खुद के लिए ना एक विकी बिल्ड कर सकता है। क्या बिल्ड कर सकता है? एक विकी, ठीक है। इट्स अ विकीपीडिया काइंड ऑफ एवरीथिंग। हो सकता है आपके पास एक ट्रेडिशनल रैग पाइपलाइन है, ओके, ट्रेडिशनल रैग है, आपने एक वेक्टरलेस रैग भी लगा रखा है, तो दैट मीन्स यू आर यूजिंग इट। बट जैसे से आप इसको यूज करोगे, एलएलएम क्या करेगा, हर क्वेरी में आपके लिए एक विकी बनाता जाएगा। अब ये विकी क्या चीज है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्ट्रक्चर्ड interlinked collection of markdown files that sits between you and the raw sources. So that means अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, यूजर ने क्या किया, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन एलएलएम के पास गया, आपने एक ट्रेडिशनल रैग बनाया हुआ है, उसने ट्रेडिशनल रैग के अंदर जाके जो भी उसको क्वेरी वगैरह करना था उसने किया, वो लेकर आया। अब एलएलएम क्या करेगा, बिकॉज उसकी नॉलेज में अपग्रेड हुआ, एलएलएम ने कुछ नया सीखा, तो वो क्या करेगा, अपनी एलएलएम विकी के अंदर जाके कुछ ना कुछ अपडेट करेगा। आई विल टेल यू व्हाट इट विल अपडेट एंड कम बैक एंड गिव यू द आंसर। नेक्स्ट टाइम इफ यू आस्क समथिंग, अगर वो एलएलएम विकी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर वो उसकी इंक्रीमेंटल नॉलेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, इट्स ओके टू गिव फ्रॉम देयर, वरना इट कैन गो थ्रू द सिंपल राउट। इट्स लाइक अ कैशिंग लेयर, मतलब अगर आप ट्रेडिशनल रेस्ट एपीआई आर्किटेक्चर से आते हो, इट्स लाइक अ कैशिंग लेयर, ओके। So that means when you add a new source, the LLM doesn't index it for later retriever. It reads it, extracts key informations, okay, key information, and integrates into the existing wiki, updating the entity pages, revising topic summaries, nothing noting where the data contradicts, okay.
एलएलएम्स जो एलएलएम विकी है ये कैसे काम करेगा? अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, देयर इज समथिंग गोइंग टू बी एन इंडेक्स डॉट एमडी फाइल। इंडेक्स डॉट एमडी फाइल क्या करेगा? हर चीज़ का एक इंडेक्स रखेगा, कौन कौन सी एमडी फाइल्स हैं। आप इंक्रीमेंटली क्या कर सकते हो, बहुत सारी एमडी फाइल्स रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस के केस में आई कैन हैव अ राइट डॉट एमडी फाइल, ठीक है, हाउ टू राइट अ डेटाबेस। आई कैन हैव अ रीड डॉट एमडी फाइल, ओके। आई कैन हैव एन इंडेक्स, डीबी इंडेक्सिंग डॉट एम डी फाइल। तो इस तरह की क्या हो रही है, फाइल्स क्रिएट हो रही हैं। देन आई कैन इवन हैव अ बल्क राइट डॉट एम डी फाइल, और इस पर्टिकुलर का जो लिंक है, इस फाइल का जो लिंक है वो हो सकता है राइट एम डी में से हो, ठीक है, तो इट इज बेसिकली रेफरिंग इट। देन आई कैन हैव अ सिलेक्ट एंड सेलेक्ट एम डी फाइल, ठीक है, एक सिलेक्ट कैसे करते हैं, डॉट सेलेक्ट डॉट एम डी फाइल। इस पर्टिकुलर का लिंक कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो मार्कडाउन फाइल्स का आप देख रहे हो, ये कौन बना रहा है, एलएलएम खुद बना रहा है, ठीक है। एलएलएम के पास इंस्ट्रक्शंस होंगी हाउ टू बिल्ड दिस एलएलएम विकी। तो ओवर टाइम जब आप अपने एलएलएम से बात करते जाओगे तो ये जो पर्टिकुलर चीज है ये बिल्ड होता जाएगा। गॉट इट, दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। तो आपके पास क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा एक नॉलेज बेस बन रहा है, दिस इज अ नॉलेज बेस। So that means this knowledge base is basically built on what thing? This is basically built on your what do you call the LLM wiki. तो इसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिसर्च इन्फॉर्मेशन, रीडिंग अ बुक, तो वो सब इसको बनाता जाएगा। नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू हैव टू क्वेरी समथिंग, वो क्या कर सकता है, फटाफट वो इंडेक्स में जाएगा, वो देखेगा क्या क्या फाइल्स अवेलेबल हैं, फाइल्स के सिर्फ नेम्स को रीड कर सकता है। फिर डिपेंडिंग ऑन योर क्वेरी वो क्या कर सकता है, उसको लगा यार राइट फाइल है समथिंग आई वांट टू रीड, राइट फाइल को रीड किया, राइट ने उसको बल्क राइट पे भेजा, बल्क को रीड किया, एंड आपको वो आंसर दे सकता है। देर इज नो नेटवर्क कॉल, इट लिव्स ऑन योर पर्टिकुलर मशीन, एंड ये जो एम डी फाइल्स हैं ये कभी भी आप नहीं बनाओगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इफ यू गो देयर ना, देर वॉज वन पर्टिकुलर थिंग दैट नेवर, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ था दैट नेवर यू आर गोइंग टू टच दीज फाइल्स, ओके। if I just search for never, yeah, you never or rarely write these wikis yourself. The LLM writes and maintains it. You are in charge of sourcing, exploration and asking the right questions. तो ये LLM wiki बेसिकली क्या होगा, ओवर टाइम ये इंक्रीज होता जाएगा अपने आप, बट इसका जो रिट्रीवल होगा वो कभी भी एक साथ नहीं होगा। LLMs are smart enough to travel this particular tree, the file tree, the LLM wiki tree, get the correct source of information and store it. So this is basically how the LLM wiki is going to be working. तो जैसे आप आज के टाइम में क्लॉड यूज करते हो या कोई भी ऑफलाइन टूल यूज करते हो, तो दैट शुड बेसिकली कंस्ट्रक्ट दिस ट्री ओवर टाइम, सो दैट एनी टाइम यू चैट विद इट, इट हैज द पीरियोडिक कॉन्टेक्स्ट। दैट्स एलएलएम विकी। नाउ आज के टाइम में जो एप्लीकेशन है वो कैसे बिल्ड होते हैं, देखो एक टाइम था, लाइक दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट रघु सर टॉट मी, ओके, दिस वॉज अ वेरी कूल थिंग। ही चेंज्ड वन थिंकिंग प्रोसेस इन मी। अगर हम थोड़ा ट्रेडिशनल सिस्टम्स में जाते हैं, जब एआई था ही नहीं, ठीक है, लेट्स गो इनटू द प्री एआई एरा। प्री एआई एरा के अंदर क्या था, आप लेट्स से सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो या जावा के अंदर कोड करते हो, राइट, यू राइट योर सोर्स कोड हेयर, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर सोर्स कोड, ओके। सोर्स कोड, आप क्या करते हो, इस सोर्स कोड को लिखते हो, एंड व्हेन यू कंपाइल दिस सोर्स कोड, आपके पास क्या होती है, एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी बनती है, दिस इज हाउ यू यूज टू डू। एंड ये एग्जीक्यूटेबल बाइनरी समथिंग जिसको आप क्या करते हो, रन करते हो और अपने कस्टमर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करते हो। बट जब आप इस पूरे कोड को गिट के ऊपर बैकअप करते हो, गिटहब के ऊपर या कहीं पे बैकअप करते हो, व्हाट डू यू बैकअप, डू यू बैकअप द सोर्स कोड और डू यू बैकअप द एग्जीक्यूटेबल बाइनरी? योर आंसर विल बी यार ऑब्वियसली पीयूष, मैं यहाँ पे सोर्स कोड को ही बैकअप करूंगा ना, बिकॉज एग्जीक्यूटेबल बाइनरी समथिंग जो मैं कभी भी रीजनरेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास सोर्स कोड है, मैं सोर्स कोड के ऊपर कंपाइल की कमांड रन करूंगा, बाइनरी बन जाएगा। सिमिलरली व्हेन वी आर इन द एआई एरा, okay, when we are in the AI era, you have a source code, but that source code is kind of not written by you. That source code is basically written through a prompt and a planning. आपने LLM के साथ कुछ prompt and planning किया, and उसने एक plan generate किया, let's say this is a plan which basically built this source code, right? And फिर आप क्या करोगे, source code का executable binary बनाओगे, let's say this is a binary, and then you are going to distribute it. Okay, that's very good. अभी आज के टाइम में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अगेन जस्ट सोर्स कंट्रोलिंग। हम सिर्फ बैकअप किसका ले रहे हैं, गिटहब के ऊपर किस चीज का बैकअप लेते हैं, सिर्फ सोर्स कोड का। दैट मीन्स वी आर लूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन। हम हमेशा क्या कर रहे हैं, जिसने वो सोर्स कोड बनाया हमने वो इन्फॉर्मेशन तो लूज कर दी। इज दैट अ करेक्ट थिंग? द प्रॉब्लम इज कि कल को अगर किसी और डेवलपर को इस सोर्स कोड के अंदर कुछ भी अपडेट करना है, चेंज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ही हैज़ नो वे, बिकॉज उसका जो एलएलएम होगा वो स्क्रैच से स्टार्ट करेगा इसके ऊपर, राइट, स्क्रैच से ही हैज़ टू प्लान। तो why are we not storing this prompt and planning things as well to the GitHub?
हमें ये जो मार्कडाउन फाइल हमने बनाया, हमने देखो ना यार इस चीज़ को बनाने में बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स लगते हैं, बहुत सारे लर्निंग्स लगते हैं। मैंने उसको बोला होगा, हे वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस फीचर, फॉर दिस आई वांट टू यूज़ दिस। तो मैंने उसके साथ प्लानिंग किया, डू यू रिकमेंड एनी अदर अप्रोच? उसने बोला कि यार हम अप्रोच बी ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए कि यार नहीं, अप्रोच बी के अंदर ये प्रॉब्लम आएगा, फिर ये करते हैं, ऐसा करते हैं। तो वी बिल्ट अ प्लान आउट ऑफ इट। कोड तो ठीक है यार, कोड तो मतलब वो आपने नहीं लिखा है, दैट्स एन एलएलएम जनरेटेड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली स्टोर दिस मार्कडाउन फाइल। क्यों? बिकॉज़ कल को जब ये सोर्स कोड के अंदर मेरे को कोई फीचर ऐड करना है, मुझे इसके बारे में कुछ अंडरस्टैंड करना है और आई वांट टू चेंज दिस, आई नीड दैट प्लान व्हिच लेड टू दिस सोर्स कोड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इवन स्टोर दिस, राइट? तो एलएलएम विकी, अगर मैं वापस जाऊँ, इट्स बेसिकली सेम थिंग। दैट ये जो मार्कडाउन फाइल्स है ना, इनको यू शुड स्टोर इट एज़ अ एलएलएम विकी। दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर सेंट्रल एलएलएम विकी, ओके? सेंट्रल एलएलएम विकी होना चाहिए। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एवरीवन इज जस्ट यूजिंग देयर ऑन ओन क्लॉड और सम काइंड ऑफ एन एआई, उसको कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं और काम करवा देते हैं और सोर्स कोड पुश कर देते हैं। भाई सोर्स कोड इज एनीवे नॉट ओन्ड बाय यू नाउ, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट एलएलएम इज राइटिंग, एलएलएम इज जनरेटिंग। व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? आपने क्या सोचा, आपने ऐसा क्या बात किया कि जिसने वो सोर्स कोड बनाया? आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड, सो दैट कल को अगर कोई और डेवलपर उसके ऊपर काम करने आता है, you have that previous context, your LLM has that previous context. That's also a part of LLM wiki. So this is basically a new era of the development where I think this should be in your source code, this should be there, so that your source code can be modified, regenerated, understood by other team members. So this is the whole concept of LLM wiki. अभी LLM wiki बहुत ही न्यू है, बट वॉट यू आर गोइंग टू नोटिस इज दैट बहुत ही जल्दी इसकी अडॉप्शन बहुत फास्ट होगी। एंड सडनली ये जो आपके ऑफलाइन टूल्स हैं लाइक क्लॉड एंड ऑल, उसके अंदर ये इंटीग्रेट ही आ जाएगा। दैट when you talk to it, it generates markdown files, LLM wiki and tree out of it, which is a shareable files. आप उसको जिप करो, अपने क्लाइंट्स को दो, अपने टीममेट्स को दो, दे कैन जस्ट import it as a as a memory kind of a thing, and they can start where you left off. So this was the concept of LLM wiki. I know initially ऐसा लग सकता है कि शायद this is not a problem that you resonate with, this is something that you don't resonate with, but soon you're going to realize that this is a very big problem. Once you work in team, once you start shipping good amount of code, that is where this bottleneck and problem comes in. Okay, so this was the whole concept, a whole story behind the LLM wiki. I hope this triggered a new thought process in you. This is something that really wondered that अभी तक हम इसको use क्यों नहीं कर रहे थे. So that was all about in this particular video. सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो कैसा लगा आप मुझे वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।